Hello, good morning. Good morning, ma'am. Okay, chalo. I think all of you are in good mood to start a new topic. Yeah. So, last class we discussed the topic of quantum mechanics. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत कुछ आपका न्यू टॉपिक भी था, बहुत कुछ सुनना भी था, समझना था. And now this topic is statistical mechanics. ठीक है, this is a second unit consists of three parts. One first part is your black body radiation, then quantum mechanics, and then statistical mechanics. Okay, so statistical mechanics एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक है. एंड बाकी इसमें बहुत सारे आपको बुक में मिल जाएगी डेरिवेशन, पर कुछ भी इसमें आपको करना नहीं है. ठीक है, डेरिवेशन वगैरह इसमें जो भी है आपको करना, इसमें कुछ भी नहीं है, सारे थ्योरेटिकल इसमें पढ़ेंगे. इसमें द टॉपिक इज वेरी वेरी सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन अगर इसमें आता है देन वेरी इजी टू अटेंड दिस टॉपिक. अभी इसको बहुत हल्का से आप पढ़ सकते हो विदाउट एनी. एक बार पढ़ लो, इसको समझ लो. समझने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें डिफाइंड ही है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. So let us see this thing. What do you mean by statistical mechanics? ठीक है, हम बच्चे इस टॉपिक को एक बार ध्यान से सुन लो, एक ही बार इसको सुनना है, बहुत कुछ इसमें पढ़ना नहीं है. क्या चीज़ है, बिकॉज इट इज ए न्यू टॉपिक, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट इट इज टोटली न्यू टॉपिक. ठीक है, सो स्टार्ट बिफोर वी स्टार्ट विद स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. So what is this statistical mechanics? Let us know that. So when we are saying the system मतलब it consists of a constitute particles. It consists of a group of particles. ठीक है. So when you are saying there are system of particles मतलब there are two types of system. One is known as static system, another is known as dynamic system. ठीक है. Static मतलब all are at rest. That is when the system in which its particles are at rest, it is called a static system. Dynamic system, it is a system in which the particles are in constant state of motion. It's called the dynamic system. Okay, जैसे हमें पता है, as usual, it is the same thing. तो इसमें हम सपोज वे सेइंग, देखो हम अब बताते हैं कोई भी एक पार्टिकल को वी आर डिफाइनिंग इन एनी स्पेस. सपोज दिस इज एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे कोई एक पार्टिकल को हम डिफाइन करते हैं एट एनी पॉइंट पी. पी इज एनी पॉइंट. देन इस पॉइंट में कोई पार्टिकल को डिफाइन करते हैं बाय मींस ऑफ थ्री स्पेस कोऑर्डिनेट. ठीक है, एक्स वाई जेड. सो ये जो होता है इसको क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय थ्री कोऑर्डिनेट. एंड इसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज ए पोजीशन स्पेस. ठीक है, दैट इज नोन एज ए पोजीशन स्पेस. नाउ व्हेन वी आर सेइंग द पार्टिकल इज इन मोशन, suppose you are saying the particle is in motion, that is right. For a dynamic system, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, the particles move with various velocities and possess momentum. Suppose you are saying this particle is moving, so at a particular point it is also associated with a momentum. So momentum of the particle at this point it can represent as px, py, pz. ओके, एंड इसको क्या कहा जाता है, देखो इसमें एक न्यू टर्म हम डिफाइन करेंगे. वन इज नोन एज पी. व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय मींस ऑफ, एज यूजुअल हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मींस ऑफ थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट, दैट इज नोन एज पोजीशन स्पेस. ठीक है, दिस इज नोन एज पोजीशन स्पेस. एंड व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग द
momentum of the particle, then also we require three coordinate in three respective direction, px, py, pz, and इसको क्या कहा जाता है? Momentum space. This is known as momentum space. So in dynamic system, what we are saying, in dynamic system we require 6 coordinates, that is 3 position coordinates and 3 momentum coordinates for its complete specification. ठीक है, and इसी को ही कहा जाता है phase space. तो statistical mechanics में any space मतलब कहाँ पे particle consider करेंगे, that is in phase space. Okay, position space momentum space का combination, and this combination of this position space plus momentum space is known as phase space. ठीक है, तो phase space सबसे पहले हम यहाँ पे define करेंगे. In any dynamics, अगर static system है मतलब हम क्या कहेंगे, particles are at rest, so it requires only 3 position coordinates for its specification. Now when the particle is in motion along with its position coordinate, it requires 3 momentum coordinates for its complete specification. That's why in phase space, blackboard बच्चे सबको दिख रहा है ना, क्लियर है बच्चे? ब्लैकबोर्ड क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ बच्चे बोलो, ब्लैकबोर्ड क्लियरली दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है ना? यस मैम. ओके, तो इन फेज स्पेस तो हम क्या कहेंगे, इन फेज स्पेस एनी पार्टिकल is represented by, that is any, in phase space any point or any particle is represented by means of 6 coordinates. क्या क्या है? x, y, z and px, py, pz. ठीक है, so instead of 3 coordinates in phase space any particle is represented by 6 coordinates, 3 position coordinates x, y, z and 3 momentum coordinates px, py, pz. ठीक है, so in अगर हम कोई पार्टिकल स्पेसिफाई करते हैं, दैट इज इसके पास कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, p is any particle at any point the position coordinate of the particle, हम बताएंगे x, y, z momentum because of its motion it is possessing 3 momentum coordinate, that is p, q, p, z. So these are the 6 coordinates that we are representing in phase space. Now suppose we are considering an elementary volume. Elementary volume आपको पता है हम क्या लेते हैं, dv कहीं पे लेते हैं एलिमेंटरी वॉल्यूम, देन इसके पास हम क्या बताते हैं, छोटा सा वॉल्यूम है, इट इज हैविंग 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 डायमेंशन, दैट इज dx, dy, dz. अकॉर्डिंगली एलिमेंटरी वॉल्यूम को हम लेते हैं dv इक्वल्स टू dx, dy, dz. जैसे लाइन एलिमेंट में dx लेते हैं, सरफेस के लिए dA इक्वल्स टू dx, dy, वॉल्यूम के लिए dx, dy, dz. ठीक है, तो दिस इज द एलिमेंटरी वॉल्यूम इन पोजीशन स्पेस जो अभी तक हम ले रहे थे. सो यहाँ पे हम क्या बताते हैं, अगर हम बताएंगे एनी एलिमेंटरी वॉल्यूम इन फेज स्पेस, सो एन एलिमेंटरी वॉल्यूम इन फेज स्पेस इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय मींस ऑफ d tau, देन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय dv. 6 कोऑर्डिनेट है तो 6 कोऑर्डिनेट dv और एक आ गया d गामा, कैपिटल गामा, दैट इज d गामा. ठीक है, dv एंड d गामा. एंड dv क्या है, dv क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट का एलिमेंटरी स्पेस वॉल्यूम dx, dy, dz. d gamma क्या है, that is dpx, dpy, that is dpz. So this elementary volume in phase space is represented by this thing. So यहाँ पे सबसे phase space क्या है, what is this phase space? Suppose हम कंसीडर करेंगे this is any volume, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, इस स्पेस को let us call it as इनफाइनाइट स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट. इसको छोटा छोटा पार्ट में बहुत सारे वॉल्यूम एलिमेंट में लेट अस डिवाइड दिस. अगर इसको बहुत सारे वॉल्यूम एलिमेंट डिवाइड कर लेते हैं देन ये एलिमेंटरी वॉल्यूम इज d tau. तो ये जो मिनिमम वॉल्यूम का साइज कितना है, दैट इज हम बाय मींस ऑफ dx, dy, dz, dpx, dqy, dpz. सो दिस इज नोन एज एन एलिमेंटरी वॉल्यूम इन फेज स्पेस. ठीक है, so the elementary volume in phase space represented by this. अभी इस चीज को मैंने जो लिखा है यहाँ पे देखो, नोट्स में देखो मैंने जो लिखा है दैट इक्वल्स टू h क्यूब. तो ये कैसे आया h क्यूब, तो इसका वैल्यू एलिमेंटरी वॉल्यूम का वैल्यू कितना लिखा है h क्यूब. तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं. तो क्या आएगा, dx के साथ dpx, dy के साथ dpy, dz के साथ आ जाएगा dpz. तो dx dpx का वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू dx dpx कितना होता है, कैन एनीवन टेल मी कितना होता है dx एंड dpx का वैल्यू?
इनका प्रोडक्ट हम कहाँ पे लेते हैं बताओ? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? dx into dpx का मिनिमम वैल्यू क्या है? दैट वैल्यू इक्वल्स टू h bar. अकॉर्डिंगली dy dq का मिनिमम वैल्यू क्या है? दैट वैल्यू इक्वल्स टू h bar. dz dp का मिनिमम वैल्यू क्या है? h bar. तो हम कह सकते हैं एलिमेंटरी वॉल्यूम इन फेज स्पेस का साइज कितना होगा? सबसे मिनिमम साइज इसका होगा h bar क्यूब. सबसे मिनिमम साइज मतलब इसका साइज इससे छोटा नहीं कर सकता फॉर क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल, नॉट फॉर क्लासिकल पार्टिकल, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज वैलिड ओनली फॉर क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल. ठीक है. सो इन ए डायनामिक सिस्टम सपोज यू आर कंसीडरिंग एन एलिमेंटरी वॉल्यूम इन फेज स्पेस, देन द मिनिमम वॉल्यूम कितना होगा? दैट इक्वल्स टू h bar क्यूब फॉर क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल. क्लासिकल पार्टिकल के लिए आज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम अप्लाई नहीं करते, तभी उसमें वी आर नॉट सेइंग दैट देयर इज एनी एलिमेंटरी वॉल्यूम इन द फेज स्पेस. एलिमेंटरी वॉल्यूम का कोई साइज हम वहां पे डिफाइन नहीं करते. ठीक है. सो वी आर नॉट डिफाइनिंग एनी साइज इन केस ऑफ एलिमेंटरी वॉल्यूम इन दिस फेज. ठीक है. पर क्लासिकली सो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेन प्रिंसिपल, यहाँ पे देखो ये समझ में आया होगा. अभी इस नोट्स में देख लेते हैं क्या लिखा है. अकॉर्डिंग टू अनसर्टेन प्रिंसिपल द वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटरी सेल ऑफ फेज स्पेस इज मिनिमम वैल्यू कितना है? ग्रेटर देन और इक्वल टू h bar क्यूब. सो h cube is the minimum volume of the elementary cell. Classically, the volume of an elementary cell can be measured to any degree of accuracy. That is, the size of elementary volume can be less than h cube, but the quantum mechanical, the volume of the elementary cell cannot be less than h cube. मतलब ये restriction जो हमने impose किया है by uncertainty principle, that is valid only for, मतलब अगर हम फेज स्पेस लेते हैं, ठीक है, इन एनी फेज स्पेस, अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं एनी फेज स्पेस, इसको हमने एलिमेंटरी वॉल्यूम में बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, एंड इसका जो मिनिमम साइज कितना होगा? h bar क्यूब होगा. उससे छोटा नहीं हो सकता, इससे बड़ा क्या तो कोई है नहीं, मिनिमम का ही रेस्ट्रिक्शन है. दिस इज फॉर क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल. अगर हम क्लासिकल पार्टिकल कंसिडर करेंगे, देन इसका जो साइज है, इसका वैल्यू h bar क्यूब से भी छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें है ही नहीं. ठीक है. सो यहाँ पे एक हम ये डिफाइन करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ एनर्जी E इक्वल्स टू GE इनटू Fe. दैट इज कितना नंबर ऑफ, सपोज एक सिस्टम में कुछ नंबर एनर्जी E इज डिवाइडेड अमंग सम पार्टिकल्स. सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ एनर्जी E इक्वल्स टू G, मतलब कितने क्वांटम स्टेट्स हैं एंड हाउ दे आर अरेंज्ड. ऐसे एक हम फंक्शन f of v, जिसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वही हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स. ठीक है. डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स. ओके, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं. व्हाट डू मीन बाय दिस माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट. माइक्रोस्टेट क्या होता है, मैक्रोस्टेट क्या होता है, ये भी एक टर्म आएगा. इसको देखो. लेट अस कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द फेज स्पेस व्हिच हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेनी टाइनी सेल्स. ईच सेल रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल रीजन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम. ईच मॉलिक्यूल may be specified by a point inside a one of the cells. The microstate of a system at a particular instant is defined as when we specify as to which particular cell each molecule of the system belongs at that instant. ठीक है. So क्या होता है माइक्रोस्टेट, क्या होता है मैक्रोस्टेट, क्या होता है, उसका भी एग्जांपल लेके देखेंगे. माइक्रोस्टेट क्या कहता है, एट एनी पॉइंट क्या होता है, will the specify to which particular cell, एक पार्टिकल किस सेल में कैसे कहाँ पे लाई कर रहा है. ठीक है. each molecule of the system belongs at that instant. मैक्रोस्टेट क्या कहता है, इट इज डिफाइंड बाय जस्ट गिविंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये माइक्रो मतलब बिल्कुल स्पेसिफाई कर लिया. मैक्रो मतलब क्या कहता है, एक सेल में कितना है, दैट इज एक सेल में N1 पार्ट वॉल्यूम है, फर्स्ट सेल में N1 पार्टिकल्स है, सेकंड सेल में N2 पार्टिकल्स है, अकॉर्डिंगली.
So there may be large microstate corresponding to one of the macrostate. So let us consider a system of 3 molecules alpha, beta, gamma, which are to be distributed in the 2 halves of a box. The left half L and the right half R. ठीक है? अगर हम बताएंगे 3 पार्टिकल्स से, इसको देखो 3 पार्टिकल्स मतलब अल्फा, बीटा, गामा, 3 पार्टिकल्स से ये कहां पे रह सकते हैं? ऐसे देखो, ऐसे 2 बॉक्स है, लेफ्ट में एक है, राइट में बॉक्स है, 3 पार्टिकल्स. सो तीनों पार्टिकल्स लेफ्ट में रह सकते हैं, राइट में खाली हो सकता है. ओके, एक सेल में तीनों रह सकते हैं, राइट में 0 रह सकता है, या फिर एक में 2 रह सकते हैं और एक में 1 रह सकता है. डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आप प्रोबेबिलिटिकल देखते हो, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये वही चीज दिखा रहा है. समझ में कुछ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं आ रहा है? हाँ, अरे बच्चे बोलो, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या खाली मैं बोलते जा रहे हो? आप खाली सो रहे हो? सब सो रहे हो क्या? बताओ, ये सुन रहे हो? आ रहा है मैम समझ, आ रहा है मैम समझ. तो बीच में उसमें से खाली हाँ ना तो बोलो. ओके, सो 3 पार्टिकल्स को हमें 2 बॉक्स में डिवाइड करना है. ठीक है, अगर हम बताते हैं यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, तो 3 पार्टिकल्स है अल्फा, बीटा, गामा. तो उनका कितने टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है? तो तीनों एक में रह सकते हैं, एक में 0 रह सकता है. ओके, सो कितने टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है? 3 मॉलिक्यूल्स लेफ्ट में रह सकते हैं, 0 एंड राइट में हो सकता है. 2 मॉलिक्यूल्स लेफ्ट में रह सकते हैं, राइट में एक रह सकता है, एक लेफ्ट में रह सकता है, 2 राइट में रह सकते हैं, एंड फिर से 0 एक में रह सकता है, बाकी एक में 3 में रह सकते हैं. 3 0 2 1 1 2 0 3. सो दीज आर द डिफरेंट अरेंजमेंट्स. अभी देखते हैं कि अरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है. ठीक है, जो अभी नीचे देख रहे थे. सो अगर हम बताते हैं ये एक टाइप का 3 0 का अरेंजमेंट क्या है? अल्फा, बीटा, गामा एंड राइट में 0. लेफ्ट राइट के बेसिस पे लेफ्ट में अगर 3 रहेगा, राइट में 0 रहेगा, मतलब अल्फा, बीटा, गामा, राइट में 0. 2 1 मतलब यहाँ पे 2, राइट में 1, यहाँ पे 2, वही 2 एंड 1 का कितना आ जाएगी? यहाँ पे अल्फा, बीटा रह सकता है, इधर गामा. यहाँ पे अल्फा, गामा रहेगा तो यहाँ पे बीटा, यहाँ पे बीटा, गामा रहेगा तो यहाँ पे अल्फा, एंड यहाँ पे 1 2 मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? 1 2 मतलब इसका उल्टा होगा. अगर यहाँ पे अल्फा आएगा, यहाँ पे बीटा, गामा आएगा, बीटा आएगा, अल्फा, गामा, ऐसे. सो कितने टाइप का अरेंजमेंट है ये सब हम देख सकते हैं. सो देयर आर ओनली 1 माइक्रोस्टेट. अगर 0 3 देखेंगे देन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा है, यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा, यहाँ पे 0 है. ठीक है, 3 0 एंड 0 3 जस्ट अल्टरनेट. Accordingly 2 1 1 2 are also just alternate. So there is only 1 microstate corresponding to a macrostate 3 0. For macrostate 2 1 microstates alpha, beta, gamma. So there are 3 microstates corresponding to this 1 microstate. मतलब अगर हम 3 0 ऐसे स्पेसिफाई करते हैं, इसको कहेंगे macrostate. अगर हम इसको अल्फा, बीटा, गामा कहेंगे देन दैट इज सेड टू बी माइक्रोस्टेट. ये क्या स्पेसिफाई कर दिया. ये 3 0 मतलब 3 पार्टिकल कहाँ पे? अभी यहाँ पे स्पेसिफाई आ गया कि अल्फा, बीटा, गामा तीनों का पोजीशन यहाँ पे एट दिस पॉइंट इट हैज बीन स्पेसिफाइड. ठीक है, सो देयर इज ओनली 1 माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू ए मैक्रोस्टेट. एंड बाकी 2 1 के लिए देखो कितने मैक्रोस्टेट आ गए? एक मैक्रोस्टेट एक है. 2 1 माइक्रोस्टेट कितना आ गया? इसमें स्पेसिफाई कर दिया अल्फा, बीटा लेफ्ट में, गामा राइट में, अल्फा, गामा लेफ्ट में, बीटा राइट में. तो देयर कुड बी 3 माइक्रोस्टेट corresponding to a single macrostate. Similarly 1 2 is also that is there is 3 macrostate alpha, beta, gamma, beta, alpha, gamma, gamma, alpha, beta. That is 3 macrostate, 3 microstate corresponding to 1 macrostate. ठीक है, for macrostate 1 2 3 microstates क्या क्या है? gamma, alpha, beta, beta, alpha, gamma, alpha, beta, gamma corresponding to 1 macrostate 1 2. For macrostate only 1 microstate, that is 0 alpha, beta, gamma. Thus the total number of ways in which 3 molecules can occupy 2 halves of the box are 1 plus 3 plus 3 plus 1, that equals to 8 equals to 2 to the power 3, corresponding to 4 different distributions. ठीक है, in a gaseous molecule there are large number of molecules in random motion, hence there exists a very large number of microstates corresponding to a given macrostate. ठीक है, so this is something regarding your microstate macrostate. बुक में भी आपको सेम टू सेम फॉर्म में दिया है. अभी हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, सारे थियोरेटिकली है तो आप इसमें देख सकते हो. सो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है?
there are two types of statistics. One is classical statistics and another is quantum mechanical statistics. So how you can classify the two types of statistics? On what basis? That is, the available volume in phase space is divided into large number of compartments, and each compartment is further divided into very large number of elementary cells of equal size. The distribution of particles कैसे डिपेंड करता है? कैसे डिपेंड करता है? मतलब पार्टिकल में बहुत सारे पार्टिकल्स है, अभी पार्टिकल का नेचर कैसा है, एंड पार्टिकल जो एक एक पार्टिकल एक एक फेज स्पेस के एलिमेंटरी सेल में लाई करेंगे उनका मिनिमम वॉल्यूम के ऊपर, एंड अब वहां पे और कोई कंस्ट्रेंट है? व्हाट आर द कंस्ट्रेंट? दैट इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन गो इन ईच सेल? ओके, ऐसे बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, जो स्टैटिस्टिक्स में मैंने बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एंड हाउ यू कैन क्लासिफाई द टू टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स? How you can classify the two type of statistics? Whether the particles are distinguishable or indistinguishable. ठीक है, particles का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है? Particles are either distinguishable or indistinguishable. मतलब पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो सकते हैं या सारे आइडेंटिकल है। इंडिस्टिंग्विशेबल मतलब क्या है? ऑल आइडेंटिकल, जिसका हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, एंड इसमें मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द सेल कितना हो सकता है? Whether any restriction on the number of particles, then that can go to each cell. So classical statistics and quantum mechanical statistics. So particles are distinguishable. In classical statistics में particles जो होता है क्या होता है? वो particles सारे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं. They can be distinguished from each other. And यहाँ पे क्या है? जो particles are indistinguishable. Indistinguishable मतलब एक दूसरे से अलग नहीं है, all are identical. And यहाँ पे क्या है? Classical में there is no restriction on the minimum volume, जो हमने starting से बोला था. क्लासिकल में मिनिमम वॉल्यूम का साइज h बार क्यूब होगा, ऐसा कोई है नहीं, कुछ भी हो सकता है उसका साइज. एंड क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में क्या होगा? मिनिमम वॉल्यूम ऑफ ए फेज स्पेस इज इक्वल्स टू h बार क्यूब, उससे छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। एंड क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में वी आर हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज नोन एज द मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. एंड अंडर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स एंड बोथ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स. क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में there is only one type of statistics called Maxwell-Boltzmann statistics. In this statistics, particles are treated as distinguishable, and any number of particles can occupy a single cell in a phase space. कोई restriction नहीं है, एक तो साइज में नहीं है, और बाकी ये भी नहीं है कि इसमें एक सेल में इतना पार्टिकल रह सकता है या फिर ज्यादा रह सकता है, उसमें भी कोई इम्पोजिशन नहीं है कि आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ऐसा ही होगा. क्लासिकल में सब फ्री है, ठीक है. तो यहाँ पे एक ही है, दैट इज योर मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. सो इसमें एक ही टाइप का स्टैटिस्टिक्स है, एंड इन दिस स्टैटिस्टिक्स, ये इसको सुनो बच्चे, तीनों स्टैटिस्टिक्स का जो डिफरेंस स्टार्टिंग बेसिक को समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है. अभी जो 3 स्टैटिस्टिक्स है ना, इसको समझ लो. अल्टीमेटली जिनका कंपैरिजन का टेबल बुक में दिया है उतना पढ़ लो, इसके लिए बहुत है, ठीक है. तीनों को हम किस बेसिस पे डिस्क्रिप्शन में, तो इसलिए ये तो मैं नोट्स दे दूंगी आपको, उसमें देख सकते हो. अदरवाइज थोड़ा समझ लो, बुक का एक टेबल पढ़ लो, तो इसके लिए भी काफी है, ठीक है. So Maxwell-Boltzmann statistics क्या है? In classical statistics there is only one type of statistics, and in this statistics the particles Recording in particles progress. आइडेंटिकल है, सारे पार्टिकल्स तो सेम एक ही जैसे होते हैं, बट दे कैन बी डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर. एंड इसमें कोई स्पिन का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. स्पिन कोई भी स्पिन हो सकता है. स्पिन का मैटर आता ही नहीं इसमें, मतलब यू विल नॉट कंसीडर द कांसेप्ट ऑफ स्पिन हियर इन दिस केस, ठीक है. वो क्लासिक क्वांटम में होगा, क्लासिकल में स्पिन कांसेप्ट आता ही नहीं, उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे. एंड द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस आर पार्टिकल्स ऑफ दिस टाइप. So gas molecules जो होते हैं all are identical but they can distinguishable from each other. Okay, so those two gas molecules are following the क्या statistics follow करते हैं, क्योंकि देखो बच्चे एक्चुअल जब हम कोई भी हायर स्टडी होता है तो हम यहाँ पे एक सिस्टम स्टडी करने के लिए उसका एक मैकेनिज्म जो होता है दैट इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म. दैट इज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, हाउ वी कैन कंसीडर द एनर्जी इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है.
पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स कितना एनर्जी स्टेट में रह सकता है, क्योंकि सबका एनर्जी के हिसाब से काम होता है। तो वही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, सब थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा आपको और थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें इतना कम सिलेबस है कि हम बहुत ज्यादा इसमें पढ़ भी नहीं सकते। The particles are distinguishable because they have specified position and momentum. Wave functions associated with the particles do not overlap with each other. So जब हम बताते हैं ना particles are distinguishable, उसमें एक चीज आता है that is a wave function associated, क्योंकि कोई particle motion में तो wave function होगा, then they उनमें आपस में overlap नहीं करेंगे। अगर overlap करते हैं then the particles are said to be indistinguishable. अगर they are not overlapping मतलब the particles are said to be distinguishable particles. Okay. The particles do not follow any symmetry conditions. इसमें कोई symmetry condition नहीं आता. A macrostate can have more than one microstate. ये समझो, अब जब पढ़ा था हमने, a macrostate can have more than one microstate. एक microstate मतलब ज्यादा, एक सेल में बहुत ज्यादा पार्टिकल भी रह सकते, कम भी रह सकते, कुछ भी रह सकते, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तभी एक माइक्रोस्टेट में मोर देन वन माइक्रोस्टेट हो सकता है। लेट पी क्यू आर द टू पार्टिकल्स व्हिच हैव टू बी फिल्ड इन टू सेल्स, देन दे आर फिल्ड बाय फोर वेज। ठीक है, अभी ये देखो, दो सेल है, दो पार्टिकल है, दो सेल है पी क्यू, दो पार्टिकल है ए बी, दो पार्टिकल है, सॉरी पी क्यू, दो सेल है ए बी। सो हम क्या कह सकते हैं, ए में पी रह सकता है, बी में क्यू रह सकता है, ए में क्यू रह सकता है, बी में पी रह सकता है, या फिर ए में पी क्यू रह सकते हैं, बी खाली रह सकता है, या फिर वाइस वर्सा, ए में जीरो रह सकता है, बी में पी क्यू रह सकता है। ठीक है, सो इसी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब यहाँ पे एक चीज को देखते हैं। ठीक है, सपोज यूर सेइंग कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास है, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अभी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वहां से जब आप करते टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, इसमें से ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स gi नंबर ऑफ सेल में कैसे लाई कर सकते हैं। आउट ऑफ n का वैल्यू अगर हम ले लिया 2 में से 2 पार्टिकल, अगर 8 में से 2 पार्टिकल, 10 में से 2 पार्टिकल, देन उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा फॉर्मूला है, इसका ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा खाली देख लो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वही चीज है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 2, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना है 2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द ith स्टेट। ओके, किसी भी एनर्जी स्टेट में कितना है, 2 पार्टिकल। सो द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 2 पार्टिकल्स, मतलब 2 पार्टिकल 2 सेल में कैसे अरेंज हो सकते हैं, वी कैन से, इसके लिए एक फॉर्मूला हम इसमें लिख सकते हैं, दैट इक्वल्स टू n फैक्टोरियल gi ni by ni फैक्टोरियल। दैट इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 2 फैक्टोरियल, कितने सेल है, कितने स्टेट है 2 है, एंड कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाई कर सकते हैं 2 पार्टिकल्स। So 2 factorial into 2 की पावर 2 by 2 factorial that equals to 4। ठीक है, so in this way हम इसमें कितने टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है नहीं, ये आपको बुक में ये वाला जो नीचे वाला फॉर्मूला है उसका पूरा डेरिवेशन मिलेगा, ये सारे बुक में डेरिवेशन मिलेगा, पर डेरिवेशन सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसका खाली डिफाइंड है। ठीक है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर, यहाँ पे एक छोटा सा लॉ को डिफाइन करेंगे, ये तो खाली एग्जांपल बता दिया, इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है। अभी ये लॉ को देख लो। हाँ, एनुअल सेंड में अटेंडेंस, द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर ni पार्टिकल्स इन gi आइगन स्टेट, मतलब क्या है, देखो ni पार्टिकल्स, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखेंगे ni पार्टिकल्स का, एंड कितने एनर्जी स्टेट है gi स्टेट, कितना आइगन स्टेट मतलब कितना स्टेट से एनर्जी स्टेट है, दैट इक्वल्स टू ni इक्वल्स टू gi बाय एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा i, एंड अल्फा एंड बीटा आर सम कांस्टेंट्स। ओके, मतलब एक ऐसा पैरामीटर जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, सो वी आर सेइंग दैट दिस इज gi बाय, इसको अलग अलग करके देख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्सपोनेंशियल बीटा बाय kt, इसको हम लिखेंगे gi इंटू एफ ऑफ एम बी। इसमें जो इंपोर्टेंट चीज है दैट इक्वल्स टू एफ ऑफ एम बी। मैंने आपको बोला था सबसे पहले एन ई इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला वहां पे लिखा था, बैक नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा पेजेस ऑर्डर में नहीं है, तो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था एक छोटा सा फॉर्मूला, दैट इज एन ई इक्वल्स टू जी ई इंटू एफ ई, ये भी वही चीज है। ठीक है, दैट इज
कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी ई, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी ई, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कितने इसका एनर्जी स्टेट है, एंड हाउ दे विल अरेंज, दैट इज द एफ ऑफ ई, जिसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको याद रखना, ठीक है। जो मैं आपको बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना, उसी हिसाब से जो फॉर्मूला है यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए अगर लिखेंगे इन दिस इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा कि इसका वैल्यू कितना है, दैट इज दिस इज एफ ऑफ एनवी ई, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का एनर्जी ई के फॉर्म में अगर देखेंगे दैट इक्वल टू 1 बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा 1 बाय एक्सपोनेंशियल बीटा बाय सॉरी केटी लिखा है, मैंने क्या लिखा है ई बाई केटी, ठीक है। इसको ई बाई केटी लिख लो बेटा, मैंने ई बाई केटी के फॉर्म ये फॉर्म याद करो, ठीक है। इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो बॉक्स बनाया मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए ऐसा होता है, इट इज डिफाइंड फॉर्मूला, आपको याद रखना, कोई डेरिवेशन इसमें है नहीं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाए, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। कैसे पार्टिकल रह सकते हैं एंड ये किसके लिए एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल टू ए सिस्टम ऑफ गैस पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, इट इज एप्लीकेबल टू ए सिस्टम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वी कैन ओनली से दैट थिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज देखो, एक्सचेंज सिमेट्रिक वेव फंक्शन, इसको एक बार देखना, इसको समझेंगे तो हाँ बच्चे बैठ लो, ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स समझ में आया, आया बच्चे, क्यों डिफाइंड थिंग है ये, कोई है नहीं डेरिवेशन या फिर कैसे हुआ नहीं, दे आर ऑल डिफाइंड थिंग। फिर भी बताओ किसी को समझ में नहीं आया, आगे चले, ओके। तो चलो देखो एक्सेस सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन, अभी हम यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी थिंग है, ज्यादा कुछ डेरिवेशन तो है नहीं, इसमें बहुत सारी चीज आ जाएंगे जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको रिमेम्बर मेनी थिंग्स इसके बेसिस पे आ जाएगा। नाम सुना है बच्चे आप लोगों ने, फर्मियन क्या होता है, बोसोन क्या होता है, सुना है नाम, फर्मियन बोसोन, नाम नहीं सुना, ओके। आई थिंक सुना होगा, फर्मियन नाम तो सुना होगा, बीच में हिग्स बोसोन बहुत न्यूज में भी आया था, नाम तो सुना होगा, ओके। सो लेट अस कंसीडर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, ठीक है। तो हम वेव फंक्शन ऑफ ए सिस्टम, वेव फंक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 up to n that equals to psi 1 psi 2 up to psi n. Let the particle 1 is in a state A and the particle 2 is in a state B. इसको देखो, 2 पार्टिकल्स है हमारे पास, 2 पार्टिकल्स से क्या क्या है, 1 2 पार्टिकल्स है, एंड 2 स्टेट क्या है, A and B are the 2 states, ओके। तो अगर हम वेव फंक्शन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्टिकल्स लेंगे, देन हम क्या कह सकते हैं, so how we can write this thing, wave function of the combination को कैसे दिखा सकते हैं, that is we can say मतलब 2 सिस्टम है, सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स इन 2 स्टेट है, तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेट में 1 रह सकता है, सेकंड स्टेट में 2 रह सकता है, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेट में 2 रह सकता है, सेकंड स्टेट में 1 रह सकता है, दो ही अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अगर ये हम इसको हम नाम दे देंगे psi 1, इसको नाम दे देंगे psi 2, तो psi 1 इसको हम दे देंगे psi 2, 1 2 या 2 1 दोनों की फॉर्म में क्या है, अगर इन्होंने अपना पोजीशन एक्सचेंज कर दिया, पहले ए में था बी में था, अभी जो बी में था वो ए में आ गया, जो ए में था बी में आ गया, तो ऐसे टाइप का पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं। When the 2 particles are indistinguishable, we cannot tell which of them is in the state, and the wave function must be a combination of psi 1 and psi 2 to reflect the likelihood. तो क्या बोला इसमें बताओ, अगर आपको मैंने 2 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल दे दिया एंड 2 बॉक्स में, आप बता सकते हो क्या कौन सी बॉल किसमें है, आप क्या बोलोगे, दोनों में व्हाइट बॉल है, कोई सा भी आप उठा लो, ठीक है, मतलब द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। सो हम उसमें स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी सेल में कौन सा पार्टिकल गया, तो व्हेन द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल देन we cannot specify that is to which cell the particle is going,
अगर आपके पास रेड बॉल है व्हाइट बॉल, देन आप बोल दोगे रेड बॉल लेफ्ट में है, राइट बॉल व्हाइट बॉल राइट में है, ठीक है, ऐसे आप बता सकते हो। पर दोनों व्हाइट है तो आप क्या बोलोगे, दोनों में ही व्हाइट है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। सो वहां पे इन दैट केस जब हम अलग अलग नहीं देख सकते, मतलब हम उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, वन इज नोन एज सिमेट्रिक, अनदर इज नोन एज एंटीसिमेट्रिक। अगर हम सिमेट्रिक कोई फंक्शन बताएंगे, देन यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, जो अभी लिखा था ऊपर साई वन, ऊपर जो इक्वेशन 1 और 2 के फॉर्म में लिखा है। सिमेट्रिक मतलब साइन एस, दैट इज फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगी, 1/√2 दैट इक्वल्स टू साइन a1 साइन b2 प्लस साइन b1 एंड साइन a2, उनका कॉम्बिनेशन इसमें ना 1/√2 मल्टीप्लाई किया है। व्हाट इज 1/√2, दैट इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो हमने किया था कल, ठीक है। ये वेव फंक्शन के फॉर्म में। तो इस चीज को, ये कौन से पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ए बोसोन। जो पार्टिकल सिमेट्रिक वेव फंक्शन का केस फॉलो करता है, दैट इज नोन एज, दैट टाइप ऑफ पार्टिकल इज नोन एज बोसोन्स, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब जहां पे ये दोनों का अरेंजमेंट हम दिखा सकते हैं, दैट इज नोन एज बोसोन्स। सो दिस इज फॉर इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स कॉल्ड बोसोन्स। एंड फॉर एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन, अगर वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स में अगर वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक हो गया, तो साइन ए को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, 1/√2, सेम चीज खाली माइनस आ जाएगी, साइन b2 माइनस साइन b1 एंड साइन a2। मतलब अगर वेव फंक्शन, यहाँ पे दो वर्ड हम डिफाइन करेंगे, व्हेन द वेव फंक्शन सिमेट्रिक, देन हम यहाँ पे क्या बताएंगे, साई a इक्वल्स टू 1/√2 साई a1 साई b2 प्लस, दोनों का प्लस होगा, दोनों दो टाइप का अरेंजमेंट है, ज्यादा टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, सिमेट्रिक के दोनों ऐड होंगे एंड 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा, एंटीसिमेट्रिक में दोनों का डिफरेंस होगा, 1/√2 मल्टीप्लाई होगा, एंड इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज साई एफ। साई एफ मतलब फर्मियर, मैं इधर लिख लेती हूँ, आपको याद हो जाए, बाकी आपने बी एंड एफ लिखोगे, दैट इज फॉर फॉर्मियंस एंड बोसोन। सो दिस इज फॉर द स्पिन ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फॉर्मियन। फर्मियन जो होता है उसके लिए क्या आ गया, दिस इज द कॉम्बिनेशन इज लाइक दिस। सो इन बोथ द स्टेट, अगर हम बताएंगे, यहाँ पे एक चीज देखो, जो मेन चीज इस पॉइंट पे आएगा, सपोज वी आर सेइंग 1 2 एंड एक ही स्टेट है एंड दोनों पार्टिकल एक ही स्टेट में लाई करेंगे। पहले क्या बोला था, दो स्टेट है ए एंड बी दोनों में, अगर हम बताएंगे एक ही स्टेट में दोनों पार्टिकल लाई करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। सिमेट्रिक के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, सिमेट्रिक में अगर ये दोनों सेम स्टेट में रहेंगे, मतलब ये भी हो गया ए, बी जहां पे है उसको हमने ए लिख दिया, तो साई a1 साई a2 प्लस साई a1 साई a2, सो दिस इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस थिंग, दैट इज 2/√2 इनटू साई a1 इनटू साई a2, ओके। अभी बताओ, अगर एंटीसिमेट्रिक में सेम चीज पुट करेंगे देन कितना आएगा, बोलो फटाफट। अगर हम एंटीसिमेट्रिक में वही चीज पुट करेंगे देन कितना आ जाएगी, ये क्या है, इसको अगर एक पुट कर लिया, बी जहां पे वहां पे एक पुट कर लिया, यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगी, दैट वैल्यू इक्वल टू 0। मतलब फॉर एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन, दैट इज फॉर फर्मियंस, दिस इज नॉट पॉसिबल दैट टू पार्टिकल्स कैन स्टे इन ए सिंगल एनर्जी सिंगल स्टेट, ठीक है। मतलब ये वाला क्वांटिटी क्या हो गया, तो व्हाट अबाउट दिस, सिमेट्रिक केस में क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक केस में ये डबल हो गया, एंड एंटीसिमेट्रिक केस में दैट इज फॉर फॉर्मियन के लिए क्या है, ये माइनस हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 0। फॉर्मियन केस में ये 0 कैसे समझ में आया, ये डबल कैसे हुआ एंड ये 0 कैसे हुआ, समझ में आया, हाँ बच्चे बोलो, ये 0 कैसे हुआ एंड ये डबल कैसे हुआ, समझ में आया या नहीं आया।
सीमा, चैतन्य, योगेश, मैम आ गया समझ में। डबल कैसे हुआ? हागू, ठीक है। ये जीरो मतलब ये क्या दिखा रहे हैं? वेव फंक्शन जीरो मतलब यहाँ पे कंस्ट्रेंट आ गया, रेस्ट्रिक्शन आ गया, मतलब वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब बोथ द पार्टिकल्स कैन नॉट स्टे इन ए सिंगल एनर्जी स्टेट। एक स्टेट में दो पार्टिकल नहीं रह सकता है। तो ये कहाँ पे आपने पढ़ा था? दैट इज द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर बोथ द पार्टिकल्स टू बी इन अ सेम स्टेट, व्हिच इज द स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो यहाँ पे एक चीज आ जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है अगर ये होता है, वरना इसका बेसिक भी बहुत क्वेश्चंस में आएगा। दैट इज व्हाई कौन सा पार्टिकल, फर्मियन क्या है? जो पार्टिकल्स आर हाफ स्पिन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑल आर नोन एज द फर्मियंस बिकॉज दे आर द स्पिन हाफ पार्टिकल्स। स्पिन हाफ पार्टिकल्स को कहा जाता है फर्मियन, एंड दे आर ओबेइंग द क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, दैट इज नोन एज द फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, हम कहेंगे एक सेल में एक ही पार्टिकल रह सकता, दो पार्टिकल एक स्टेट में नहीं रह सकते, बिकॉज द फॉर्मियंस आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वेयरएज बोसोन में क्या है? बोसोन में देखो वेव फंक्शन क्या है? 2/√2 psi a1 psi a2 ये आ गया था, मतलब बोसोन्स आर नॉट फॉलोइंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता। दैट्स व्हाई यहाँ पे एक स्टेट में मोर देन वन पार्टिकल कैन लाई, वेयरएज फर्मियंस कैन नॉट लाई इन ए more than one fermion cannot lie in a single energy state, ठीक है। इस बेसिस पे अभी दोनों स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे। So fermions are obeying Pauli's exclusion principle. We can say that two fermions cannot stay in the same state, but for boson the wave function is existing, that is more than one boson can stay in the same state, hence bosons are not obeying exclusion principle। ये एक क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा पार्टिकल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करता है? एमसीक्यू तो ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। फर्मियंस फॉलो करता है, बोसॉन्स नहीं करता। तो अभी ये डिफरेंस जब क्वेश्चन होते थे ना 2 नंबर में, ये भी आता था बहुत बार, डिफरेंशिएट बिटवीन फर्मियन एंड बोसॉन। तो पार्टिकल्स व्हिच ओबे द फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड फर्मियंस, पार्टिकल्स व्हिच ओबे द बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड बोसॉन्स, एंड दे आर स्पिन हाफ पार्टिकल्स। फर्मियन क्या होते हैं? हाफ स्पिन पार्टिकल होते हैं। बोसॉन्स क्या है? इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स होता है। एंड ये क्या है? फर्मियंस ऑलवेज ओबे एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड बोसॉन्स नेवर ओबे द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका एग्जांपल, फर्मियन का एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंड इसमें क्या आ जाएगा? फोटॉन्स, ठीक है। अभी इस बेसिस पे कल हम क्लासिफाई करेंगे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्या क्या है, इसको एक बार इनका डिफरेंस देखेंगे। देन मैं आपको कुछ चीज बुक से आप कैसे कर सकते हो, ये पकड़ अच्छा नहीं आया, ठीक है, देखते हैं। तो आपको मैं और भी कुछ चीज दिखा दूंगी, बुक से क्या क्या पढ़ना है वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो समझ में आया बच्चे जितना आज पढ़ा? डिफाइंड थिंग्स था। एक बार तो ये तो थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ के आपको याद रखना है, इसमें तो समझने लायक कुछ है नहीं, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, एंड इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। सो नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग।